Okay, so here comes manifestation point number 11. Manifestation point number 11. What is that? Happiness attracts everything you want. Happiness attracts everything you want. So be happy always. Be happy always. खुश रहिए. मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए. Happiness attracts everything you want. Let me explain this to you. The shortcut to anything you want in your life is to be and feel happy now. Be happy. खुश रहिए और उसको अनुभव भी कीजिए. मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. ये सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, ये फीलिंग्स में होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम में होना चाहिए. अंदरूनी बात है ये. ऊपर ऊपर सुपरफिशियल हैप्पीनेस नहीं कि हंस दिया हो गया. नो, नॉट दैट. कंटेंटमेंट. बी कंटेंट. सो द शॉर्टकट टू एनीथिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ. अगर कुछ भी चाहिए लाइफ में, मैनिफेस्टेशन, बिकॉज दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशन कार्ड्स. तो how do you want it in your life? Now for that you have to be happy and feel happy. Happiness को feel कीजिए अंदर से. Be happy. उसको feel कीजिए तो you'll be happy. You'll feel that feeling of happiness. It is the fastest way to bring money and anything else you want. पैसा बोलिए या कुछ भी बोलिए. Anything that you wish, anything that you desire in your life. So it is the fastest way to bring money and anything else you want in your life. So for that, happiness is important because happiness attracts everything you want. Those feelings of happiness will radiate out, radiate करेगा आपके माइंड के एनर्जी से. जो हैप्पी वाली फीलिंग है अंदर से वो रेडिएट करेगा, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी रेडिएट करेगा यूनिवर्स में, तब जाके पहुंचेगा वो वाइब्रेशन. सो दोज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस विल रेडिएट आउट एंड अट्रैक्ट बैक टू यू ऑल थिंग्स दैट ब्रिंग यू हैप्पीनेस. ये जो हैप्पीनेस आप अपने अंदर क्रिएट करोगे थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फीलिंग्स, इसका तो वाइब्रेशन बनता है ना. ये एक एनर्जी है, एनर्जी टाइप है, इसका भी एक अलग वाइब्रेशन बनेगा, हैप्पी वाइब्रेशंस. तो ये आपके अंदर से रेडिएट करेगा, आपके अंदर भी पहुंचेगा इसका रेज, इसका वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भी पहुंचेगा. फिर जब भी यूनिवर्स में पहुंचेगा, यूनिवर्स इसी का रेप्लिका आपको भेजेगा. दैट इज कम्स अंडर द थियोरी ऑफ लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स. जैसा आप हो, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही आप पाओगे. So those feelings of happiness will radiate out and attract back to you all things that bring you happiness. आपके पास सब वो ऐसी चीजें लेके आएगा यूनिवर्स जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आप खुश होना चाहते हैं. वैसा सब कुछ वापस आपके पास आएगा. Once you create that kind of feeling of happiness inside you, inside your mind, with your thoughts. Which will not only include an abundance of money, but everything else you want. जैसा पहले भी कहा कि it is the fastest way to bring money and anything else you want. चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो. Anything that you wish, anything that you desire. कुछ भी हो. So, it will not only include an abundance of money, but everything else you want. So, happiness attracts everything you want. So be happy. Get that feeling of happiness within you. Feel that and be that. Be that happiness, be that love, what you want. तभी जाके फ्रीक्वेंसी मैच करेगा. नहीं तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा,
तो योर मैनिफेस्टेशन विल नेवर कम ट्रू. यू कैन नॉट मैनिफेस्ट देन. सो आपका जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन रहेगा, उसी वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का रिटर्न आपको मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स. Isn't it? I hope you got it. Okay, so we'll move on to the next point. Here comes manifestation point number 12. What is that? Money comes to me effortlessly and easily. Money comes to me effortlessly and easily. Explanation. If you have held thoughts in the past that the only way money can come to you is through your job, then let that thought go. Let it go away. अगर आपने ऐसा कभी सोचा है कि मैं जो काम करता हूँ, मैं जो जॉब करता हूँ या करती हूँ, उसी से सिर्फ मेरे को पैसा मिलता है, बाकी तरीके से नहीं, या बाकी तरीके से नहीं मिल सकता, मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मुझे पैसा मिलता है, बस वही मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है. That is the only one source that I have in my life. अगर आप इस टाइप का थॉट रखते हैं तो ऐसा मत रखिए. इस टाइप का थॉट मत रखिए. You have to discard this kind of thought. If you have held thoughts in the past, अगर पहले आप ऐसा थॉट रखते थे तो उसको कैंसिल कीजिए. उस थॉट को मेंटल वर्क कीजिए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, उस थॉट को कैंसिल कीजिए कि सिर्फ मेरे को पैसे से ही, जॉब से ही पैसा आएगा मेरे पास, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है मेरा. ऐसा मत सोचिए, ऐसा थॉट मत रखिए अपने अंदर. इफ यू हैव हेल्ड थॉट्स इन द पास्ट दैट द ओनली वे मनी कैन कम टू यू इज थ्रू योर जॉब, देन लेट दैट थॉट गो अवे. इसको हटाइए. इस टाइप का अगर थॉट अपने अंदर रखते हैं तो इसको हटाइए. Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you experience? Tell a different story. Money can come from any and every direction. It's like a magic. Only that one thought is needed. फिर आप देखो कैसे मैजिक की तरह काम करता है. Are you getting my point? हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम एक ही हो, एक ही जगह से पैसा आता है. सपोज जिन लोगों के लिए ऐसा है तो आप इस थॉट को अब से ऐसा सोचना बंद कर दीजिए. कहीं भी किसी भी तरीके से ऑब्वियसली सही दिशा होनी चाहिए, पाथ सही होना चाहिए, पॉजिटिव पाथ होना चाहिए. सो ऐसा सोचिए कि मनी कैन कम फ्रॉम एनी एंड एवरी डायरेक्शन. कहीं से भी, चाहे वो लॉटरी हो या कुछ भी हो, किसी भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो. ओके, सो ऐसा सोचिए. आप पुराने वाले थॉट को कैंसिल करके आप ऐसा सोचो कि मनी कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड एवरी डायरेक्शन. देन योर मैनिफेस्टेशन ऑफ गेटिंग मोर मनी will come to you effortlessly and easily. आपको ये थॉट चेंज करना पड़ेगा जैसा मैंने समझाया. Okay, now manifestation point number 13. Manifestation point number 13. What is that? Just focus on prosperity. Prosperity हम लोग सब जानते हैं क्या है. Being prosperous, so just focus on that. Focus on prosperity. Explanation ये है, the universe has abundance for you. यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है और सब कुछ है आपको देने के लिए. कमी तो हम लोगों के पास होती है, लेकिन यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं होती है. It's abundant. Abundant source of supplies. So the universe has abundance for you, and it's not your job to work out how the money will come into your life. पैसा कैसे आएगा
ये सोचना आपका काम नहीं है. It's not your job to work out how the money will come into your life. Then what is your job? Your job is to ask, to believe you have received it already. It sounds like an illusion though. It sounds like an illusion, but this is how manifestation works. The magic of manifestation, or the rules of manifestation. This is how manifestation works. So what is your job in this manner? It is your job to ask the universe to believe. विश्वास कीजिए अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिमाग में, that you have already received it and to feel happy now. मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसों की कमी है मेरे पास. इन सब थॉट से मुक्त कीजिए अपने आप को. ये सब क्या है? नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिसका नेगेटिव एनर्जी हो रहा है और जिस एनर्जी का नेगेटिव वाइब्रेशन हो रहा है. तो आपके पास आप जैसा सोचोगे, जैसा थॉट्स का वाइब्रेशन होगा आपके पास उसी टाइप का वाइब्रेशन वापस आएगा. दैट्स द फंडा ना. सो आपको सोच बदलना पड़ेगा. आप सोचो कि आपके पास पैसा है. आस्क यूनिवर्स एंड बिलीव. आस्क योरसेल्फ, टॉक इट आउट with your own self and believe that you have already received it. आपने वो पैसा, वो धन पा लिया. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इल्यूजनरी लगता है, डिल्यूजन लगता है, लेकिन ऐसे ही काम करता है मैनिफेस्टेशन. आपको थॉट्स बदलना पड़ेगा. सो आपको पैसा मिल चुका, आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत पैसा है और आप खुश हैं. खुश हैं, सिर्फ सुपरफिशियल खुशी नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, ऊपर का नहीं, अंदरूनी खुशी. फील इट डीप विद इन यू. हैव इट इन योर बिलीफ सिस्टम. एनीथिंग यू हैव टू हैव इट इन योर बिलीफ सिस्टम. दैट्स द कोर, द फाउंडेशन. मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, दैट्स द कोर ऑफ योर इनरमोस्ट बीइंग. सो इट्स योर जॉब टू आस्क, टू बिलीव you have received it. Already received what? Received money. You have already received it and to feel happy now. ये पूरा आपका सोच होना चाहिए कि आपके पास अभी धन है बहुत और आप खुश हैं उससे. तो क्या हो रहा है? आपका सोच बदल रहा है. आपका सोच बदल रहा है और सोच बदलने के कारण क्या हो रहा है? सोच का वाइब्रेशन बदल रहा है. उस वाइब्रेशन आप बाहर रेडिएट कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्स में जा रहा है. यूनिवर्स को पता चल रहा है और यूनिवर्स वापस वही आपको भेज रहा है. उसी वाइब्रेशन का मैचिंग वाइब्रेशन, मैचिंग फ्रीक्वेंसी आपको भेज रहा है. लीव द डिटेल्स टू द यूनिवर्स ऑन हाउ इट विल ब्रिंग इट इनटू योर लाइफ. यूनिवर्स कैसे करेगा ये छोड़ दीजिए, ये जानना आपका काम नहीं है. यूनिवर्स इज अ मैजिशियन. यूनिवर्स इज अ मैजिशियन. यूनिवर्स इज वाइज. So, leave the details to the universe on how it will bring it into your life. यूनिवर्स कैसे लाएगा धन, पैसा, दौलत आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये सोचने का काम आपका नहीं है. आपको सिर्फ जितना करना है आप उतना कीजिए जो आपका काम है. सिर्फ इतना सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन है जो कि सही तरीके से आपने कमाया है. ऐसा सोचिए, कोई गलत मोड्स या मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं. और आप खुश हैं उस धन से, उस दौलत से आप खुश हैं. अंदरूनी तरीके से इसको फील कीजिए. उसके बाद देखिए यूनिवर्स क्या क्या करता है आपको, आपके लिए, आप तक क्या क्या पहुंचाता है. सो दिस इज द वे दिस मैनिफेस्टेशन वर्क्स. जस्ट चेंज योर थॉट. हो सकता है आपको ये थोड़ा अद्भुत लगे, लेकिन ऐसे ही काम करता है मैनिफेस्टेशन. मैंने पहले भी जैसे कहा, अभी मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है. Okay, so now
Manifestation point number 14. The previous one was 13 and now it's point number 14. What's that point? Change your mind and change your life, which equals to change your thought, change your destiny. बात एक ही है, मीनिंग एक ही है इसका. जरा याद करके देखिए मैंने क्या कहा था उस पॉइंट में. चेंज योर थॉट, चेंज योर डेस्टिनी. सो दिस इज द सेम थिंग बेसिकली. द मीनिंग इज सेम. चेंज योर माइंड and change your life. Hence you will change your life if you change your mind. Change your mind in the sense, what is mind? Full of thoughts which is created by your brain. So change your mind and change your life. Explanation क्या है? No matter what you might have manifested, you can change it with one small positive thought and then another. अगर आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लिया अपने लाइफ में जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिससे आपको कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जो आपको खुशी नहीं दे रही है, नेगेटिव लगता है आपको वो अपने लाइफ में, तो आप अपने थॉट के जरिए इसको चेंज कीजिए और फिर अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं उस थॉट के बारे में सोचिए. दैट इज हाउ यू चेंज. यू फ्लिप दैट और यू ट्रांसफर दैट थॉट फ्रॉम द प्रीवियस वन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट यू वांट नाउ, एंड डिस्कार्ड द ओल्ड वन, द प्रीवियस वन विच इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस. इजंट इट? इसी के बारे में कहा गया है इसमें. नो मैटर व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड, आपने चाहे जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, जिससे आप खुश हो, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है. खुशी है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही चलेगी, क्योंकि हम लोग सब वही चाहते हैं, शांति, खुशी, प्यार, सब कुछ पॉजिटिव. सो नो मैटर व्हाट यू माइट हैव मैनिफेस्टेड, यू कैन चेंज इट विथ वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट एंड देन अनदर. धीरे धीरे करके एक एक करके पॉजिटिव थॉट लीजिए. एक दिन में एक पॉजिटिव थॉट. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. सिर्फ दिमाग में मत रखिए, दिमाग तक पेन पेपर में उसको लेके आइए और उसको रोज देखिए, रोज अपने अंदर उसको बोलिए, अपने मन में फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए उस पर. गिव दैट पावर टू दैट थॉट, गिव योर एनर्जी टू दैट थॉट, गिव योर फोकस टू दैट थॉट. और धीरे धीरे ऐसा करके एक एक पॉजिटिव थॉट लीजिए. एक थॉट के ऊपर मान लीजिए आप 2 दिन काम करेंगे या 3 दिन काम करेंगे, ताकि वो डीपली बैठ जाए आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस में. कॉन्शियस है ऊपर का लेवल, सबकॉन्शियस है अंदर का लेवल. तो सबकॉन्शियस में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है. तो लेट इट सेटल डाउन होने दीजिए उस थॉट को. इसके लिए आपको मान लीजिए 1 हफ्ता 7 दिन तक आप इस एक पर्टिकुलर पॉजिटिव थॉट के ऊपर काम करेंगे. आर यू गेटिंग इट? जब ये हो गया, आपके बिलीफ सिस्टम में अंदर चला गया, घुस गया, आपके दिमाग में ये घर कर गया, तब स्टार्ट विथ अनदर थॉट, अनदर पॉजिटिव थॉट. सर्टनली another positive thought. Obviously आप नेगेटिव तो नहीं चाहेंगे, तो पॉजिटिव थॉट. स्टार्ट another positive thought. Again write it down. क्या थॉट है आपका पर्टिकुलरली, उसके ऊपर सोच विचार कीजिए. गिव टाइम टू योर सेल्फ. द मेन थिंग इज हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते हैं. यू हैव टू हैव योर मी टाइम, अपने लिए टाइम. तभी तो आप चेंजेस कर पाएंगे. अगर आप अपने तरफ देखेंगे ही नहीं, ध्यान नहीं देंगे अपने तरफ, तो फिर कैसे क्या कर पाएंगे? सिर्फ काम 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 काम, भागना दौड़ना, ऑफिस घर घर ऑफिस, बचा क्या है फिर?
आर यू गेटिंग इट? तो अपने ऊपर काम कीजिए, इसके लिए अपने आप को टाइम दीजिए. गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर वेलबींग, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में. इंट्रोस्पेक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जिस्टेंस. सोचिए. ओवर थिंकिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ. ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड सर्टनली. दिमाग मशीन नहीं है कोई. दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, हाथ पैर को रेस्ट चाहिए होता है, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए. तो ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन जितना सोचना है सोचिए. इसको भी प्रैक्टिस कीजिए कि मैं इतने देर तक इसको सोचूंगा या सोचूंगी, उसके बाद आगे नहीं सोचूंगी. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस. ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है. मैजिक नहीं है जो ओवरनाइट आ जाएगा या ओवरनाइट हो जाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस हैबिट. So change your mind and change your life. No matter what you might have manifested, you can change it certainly. With one small positive thought and then another. एक एक करके एक एक थॉट को 7 days तक अपने अंदर चर्न कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, उस थॉट के साथ बैठिए, सोचिए उसके बारे में, लिखिए उसके बारे में. क्या चाहिए आपको जो आपके लिए अच्छा हो. ऑब्वियसली वो दूसरों के लिए बुरा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा. इट्स वेरी मच नीडेड. किसी की बुराई नहीं, अपना अच्छा, लेकिन इसका मतलब दूसरों का बुराई नहीं. समझ रहे ना आप मैं क्या बोल रही हूं? तो वन पॉजिटिव थॉट, इसीलिए बोल रहे हैं पॉजिटिव थॉट. उसके ऊपर 1 हफ्ता काम कीजिए, फिर वो बिलीफ सिस्टम में आ जाए, सबकॉन्शियस में आ जाए, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉजिटिव थॉट. दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ. सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 14. ओके, नाउ इज पॉइंट नंबर 15. Point number 15. What is that? Focus on the solution. Focus on the solution means प्रॉब्लम में फोकस मत कीजिए. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि तभी आपका सारा एनर्जी उस पर जाएगा. मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, सब नेगेटिव थॉट्स है. इस पे फोकस मत डालिए. ये नेगेटिव एनर्जीज आप बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, अपने लाइफ में, अपने आसपास. सो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, फोकस उसमें दीजिए. आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. when you resist a situation that has manifested, you add more energy and more power to it. The event or circumstance can only get bigger because that is the law of the universe. To shrink an unwanted situation, put your energy and power into thoughts of what you want. तो वही मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान मत दीजिए. इस प्रॉब्लम का हल क्या निकल सकता है उस पे ध्यान दीजिए. क्या सॉल्यूशन बन सकता है इस प्रॉब्लम का, उपाय क्या निकल सकता है इन अ पॉजिटिव वे, उस पे ध्यान दीजिए. फोकस सारा अपना, अटेंशन सारा अपना उस पे डालिए, ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, आई होप इट्स easy to understand. So tell me guys, how do you like it? In my next video I'll cover the other points of manifestation by Rhonda Byrne. So let me know in the comment section, how do you like it, whether you're applying to your own life or not.